All right, guys. Let's start paper 5, planning analysis and evaluation paper. We are solving October-November 2021, variance 51. The duration of this paper is 1 hour 15 minutes. Okay, let's see what we have in the paper. Seems like simple calorimeter का experiment है, तो enthalpy से related कुछ discussion होगी. Question is saying potassium hydrogen carbonate decomposes when strongly heated to form potassium carbonate. Okay, so I'm just heating it. Okay, and it is converting into potassium carbonate, carbon dioxide, and water. That's the thermal decomposition. A student plans to determine the value of enthalpy change for this reaction, delta HR, which cannot be determined directly. Okay, why? Why it cannot be determined directly? Because ये solid है और solid substance की enthalpy calculate नहीं की जा सकती. Because solids की enthalpy calculate नहीं की जा सकती. Solids have zero enthalpy or difficult to measure in solid state. ठीक है? The student carries out two separate experiments using the following apparatus. इस apparatus को हम simple calorimeter कहते हैं. इसमें जो temperature है वो obviously measure करेगा temperature को to measure the temperature. Okay. Polystyrene कब क्यों use करते हैं? Because it absorbs negligible amount of heat. ओके और हम जब A1 में थे तो हमने आपसे ये कहा था कि हम इस पॉलीस्टाइरीन कप को बीकर के अंदर भी प्लेस कर देते हैं. माय गुडनेस, दैट वाज अ वियर्ड बीकर. मेक इट इन अ प्रॉपर वे. ये हमारा बीकर है. ठीक है. एंड ऑब्वियसली आप जानते हैं कि इस प्लास्टिक कप और बीकर के दरमियान स्पेस अवेलेबल है, तो यहाँ से हीट लॉस पॉसिबल है क्योंकि हमने यहाँ कोई इंसुलेशन नहीं लगाई. दिस सो दिस माइट बी द सोर्स ऑफ एरर इन दिस एक्सपेरिमेंट. ओके, ये थर्मामीटर है जो कि टेम्परेचर को मेजर कर रहा है. हमने इसी थर्मामीटर के थ्रू जो है वो स्टर भी करना है सोल्यूशन को. स्टर क्यों करना चाहते हैं हम सोल्यूशन को? क्योंकि आप जानते हैं कि इस प्लास्टिक कप के अंदर HCl है 2 मोल पर डीएम क्यूब, और इसी प्लास्टिक कप के अंदर आपके पास सॉलिड पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है. तो अगर आप इसको स्टर नहीं करेंगे ना, तो सिर्फ इस सॉलिड की जो सरफेस है वो इस HCl के साथ कांटेक्ट नहीं आएगी. ये पूरा सॉलिड कांटेक्ट में नहीं आएगा. तो जब मैं स्टर करूंगा ना, तो ये पूरा सॉलिड फिर कांटेक्ट में आएगा और फिर प्रॉपर रिएक्शन होगा. ओके. एक्सपेरिमेंट 1 uses solid potassium hydrogen carbonate. that shows कि एक्सपेरिमेंट 1 से जो वैल्यू मिलेगी मुझे एंथैल्पी की वो डेल्टा H1 होगी. एक्सपेरिमेंट 2 uses solid potassium carbonate. एक्सपेरिमेंट 2 से जो मुझे वैल्यू मिलेगी एंथैल्पी की वो डेल्टा H2 होगी. ओके. The method is used for both experiment. Okay. Transfer 50.00 cm cube. Very accurate volume by the way. और इतना accurate volume आप किससे मेजर करोगे? ब्यूरिट से. ठीक है. An excess of 2 mole per dm cube hydrochloric acid into a cup. After 2 minutes, record the temperature of the acid. Okay. ठीक है. Weigh approximately 0.025 moles of solid. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इसको वे करना है इतना, या मास इतना लें कि मोल्स मेरे पास 0.0250 मोल्स. ठीक है. Add the solid to the acid. Stir the mixture. मैंने स्टर का है. स्टर क्यों जरूरी है? For uniform distribution of heat. In the solution. ठीक है. Using a thermometer and record the temperature throughout the reaction.
Hazards information: 2 mole per dm cube hydrochloric acid is irritant. Solid potassium hydrogen carbonate is and solid potassium carbonate may cause irritation to skin and eyes. The equations for the two reactions are, ठीक है, suggest why it is not possible to measure delta H bar for the decomposition reaction directly. तो decomposition reaction directly क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं solid substance का temperature जो है वो डिटरमिन नहीं कर सकता डायरेक्टली, ठीक है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, सही है, ये लिखा हुआ because it is not possible to measure the temperature of solid ठीक है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो स्टेबल टू हीट होता है, पोटेशियम कार्बोनेट जो है वो स्टेबल टू हीट होता है, ऑलराइट, सो इट दे रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टेम्परेचर फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन, तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। ये भी लिख सकते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट and potassium carbonate are thermally stable hence require a lot of energy, hence require a lot of energy for thermal decomposition. Okay, all right, now the next part of the question is calculate the mass of 0.02 moles of each solid. Give your answer to 3 decimal places. Okay, 3 decimal places पे आंसर देना है। Relative atomic mass given है, each solid के moles mass calculate करना है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे हम सबसे पहला काम MR of potassium हाइड्रोजन कार्बोनेट कैलकुलेट करेंगे। तो पोटेशियम आ जाएगा 39.1 प्लस हाइड्रोजन आ जाएगा 1.0, कार्बन आ जाएगा 12.0, ऑक्सीजन आ जाएगा 16.0 इंटू 3। तो यहाँ से पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मास आपके पास आ जाएगा आई थिंक 100.1, तो ये हो जाएगा 39.1 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 16 टाइम्स 3 इज गोइंग टू बी 100.1, राइट। तो अगर मुझे मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैलकुलेट करना हो तो मोल्स जो कि मेरे पास 0.0250 थे उनको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा 100.1 से, तो मेरे पास मास आ जाएगा विच इज इनटू 0.025, सो इट्स गोइंग टू बी 2.5025 2.5025 ग्राम। हमें तो आंसर 3 डेसिमल प्लेस में देना है, तो हम आंसर देंगे 2.503, ठीक है, राउंड ऑफ कर लिया हमने, 503 हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से दूसरे वाले सॉलिड, ईच सॉलिड का क्या रहना, तो हम अब MR निकालेंगे पोटेशियम कार्बोनेट का। तो 39.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कार्बन है हमारे पास 12.0, ऑक्सीजन है हमारे पास 16.0 इंटू 3, तो यहां से हमारे पास MR आएगा 138। तो अगर मुझे यहां से मास कैलकुलेट करना हो पोटेशियम कार्बोनेट को, तो जो मोल्स हैं 0.0250 उसको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा 138 से,
तो मेरे पास मास कितना आ जाएगा, 0.025 into 138 is going to be 3.45, sorry 3.455 आएगा। तो मुझे तो 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना है, तो 3.455, ठीक है, दैट्स माय आंसर। Now the next is the masses of solid are measured using a 3 decimal place balance. Again 3 decimal place balance है, तो error in single reading क्या होगा, error in single reading would be 0.0005 ग्राम। सही है। वो कह रहे हैं कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है मैक्सिमम एरर ओवर वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, इनटू 100। अब मसला ये है कि मुझे परसेंटेज एरर निकालना है, तो एरर इन सिंगल रीडिंग कितना है फॉर 3 डेसिमल प्लेस 0.0005 ग्राम। और मसला ये है कि भाई मैं इनिशियल मास और फाइनल मास लेता हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं वैल्यू को मल्टीप्लाई 2 करूंगा, क्योंकि मैं 2 रीडिंग्स ले रहा हूँ। पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मास कितना है 2.503, उसको डिवाइड करूंगा मैं इनटू 100 करूंगा, सो मेरे पास परसेंटेज एरर आ जाएगा 0.04%। हम यहाँ लिखेंगे 0.04%, ठीक है। Now the next is the student obtained the following results. Okay, ये इनिशियल टेम्परेचर है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो 17.5 माइनस मैक्सिमम टेम्परेचर से मिनिमम टेम्परेचर होगा, तो 14.0 माइनस 17.5 is going to be minus 3.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर होगा 20.5 माइनस 19.0 इज गोइंग टू बी 1.5। अच्छा, दो बातें यहाँ पर, पहली तो बात ये कि यहाँ पर टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होगा। रिएक्शन इज एंडोथर्मिक since temperature is dropping, since temperature is dropping, right? जबकि यहां पर क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गई। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक as temperature is increasing, right? ये चीज ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। कंप्लीट द टेबल बाय कैलकुलेटिंग टेम्परेचर चेंज, ये हो गया। यूज द फॉर्मूला Q equals to mc delta T to determine the energy change. Q, energy change that took place during experiment 1. Use Q to calculate enthalpy change of reaction 1 in kilojoules per mole. Include a sign in your answer. Sign मांग रहे हैं वो आपसे। ओके ओके ओके, तो मुझे याद है मैंने A1 में आपको सिखाया है, इसका पहला स्टेप होगा डेल्टा Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T। M जो है वो आपके पास मास ऑफ एक्सपेरिमेंट 1 है, तो एक्सपेरिमेंट 1 में हमारे पास क्या था, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो एक्सपेरिमेंट 1 में पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मास है 2.503 और हमारे पास 50 cm³ भी है। तो ऑब्वियसली हमारे पास दो वॉल्यूम है, दो मासेस हैं। 50 cm³ ऑफ 2 मोल पर dm³ है ना। तो मैं यहाँ पर याद रखिएगा
1 cm cube is always equals to 1 gram. तो अगर आपने 50 cm cube लिया था तो it is going to be equal to 50 gram. तो यहाँ पर 50 cm cube of HCl is going to be 50 gram. तो हम ये मास यहाँ पर प्लग इन करेंगे क्योंकि हमने इनिशियल टेम्परेचर इसी से निकाला था. 4.18 क्वेश्चन के अंदर गिवन है. डेल्टा टी हमारे पास कितना गिवन है? -3.5. तो यहां से डेल्टा क्यू मेरे पास कितना आ जाएगा? -731.5 जूल्स. इसको आप किलो जूल में कन्वर्ट कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास -0.7315 किलो जूल्स. ऑलराइट. और मुझसे तो वो कह रहे हैं एंथैल्पी कैलकुलेट करो, एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन. तो एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करने के लिए मुझे पर मोल की कैलकुलेशन करनी होगी. तो आप जानते हैं कि मेरे पास पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मोल्स क्वेश्चन में कितने थे? 0.0250 मोल्स. उस मोल से मुझे कितनी एनर्जी मिल रही है? -0.7315 किलो जूल्स. राइट. तो अगर 1 मोल होगा तो फिर कितनी एनर्जी हो जाएगी? तो 1 मोल में कितनी एनर्जी है? तो भाई माइनस साइन तो मैं वैसे ही लगाऊंगा क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, और माइनस साइन जो है वो मेरे पास वैल्यू का है. सही है. तो ये डिवाइड हो जाएगा मेरे पास 0.0250 से. तो मेरे पास आंसर आ जाएगा +29.26 किलो जूल्स पर मोल. मैं इस वैल्यू को उठा के यहाँ लिख दूंगा. ठीक है. और ये एंडोथर्मिक आपको पता है ना क्यों है? क्योंकि मैंने कह दिया था कि रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है. ड्रॉप हो रहा है इसलिए माइनस साइन मैंने लगाया. माइनस हमारे पास इससे आ रहा था वैल्यू से, इसलिए वो प्लस में कन्वर्ट हो गया. और ये प्लस का साइन यहाँ पर आएगा क्योंकि वो साइन मांग रहे हैं आपसे. ठीक है. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. देन वी हैव similar kind of question again. Use the formula to determine the energy change that took place during experiment 2. Use Q to calculate enthalpy change of the reaction. Okay. So मुझे actually सबसे पहले डेल्टा Q कैलकुलेट करना है, फिर डेल्टा H कैलकुलेट करना है, साइन बताना है मैंने. ठीक है. ओके. अच्छा, अब यहाँ पर भी हमने कितना लिया हुआ था भाई? वॉल्यूम ऑफ HCl कितना था? 50 cm क्यूब. Since 1 cm cube is always equals to 1 gram, तो 50 cm cube equals to 50 gram according to my lecture. So मेरा पहला स्टेप होगा डेल्टा Q equals to mc डेल्टा T. मास की जगह पे क्या रखूंगा मैं? 50. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.18. टेम्परेचर चेंज 1.5 आया था अगर आपको याद हो एक्सपेरिमेंट 2 में. ये रहा. सही है. तो यहां से आपके पास डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है? अगर मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करूं तो ये हो जाएगा 313.5 जूल्स. इसको आप किलो जूल्स में कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा 3.135 किलो जूल्स. राइट. मोल्स हमें पता थे पोटेशियम कार्बोनेट के 0.0250 क्योंकि दोनों के मोल्स हमने सेम लिए हुए थे. कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि दोनों के मोल सेम लिए हुए हमने. ठीक है. तो हम यहाँ लिखेंगे 0.0250 moles gives you how much energy? 3.135 kilojoules. एंथैल्पी चेंज हमेशा 1 मोल में कैलकुलेट की जाती है. तो अगर 1 मोल है तो बताइए एंथैल्पी चेंज कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर एंथैल्पी चेंज मेरे पास आ जाएगा 12.54 किलोजूल्स पर मोल. और आप जानते हैं कि मैं 12.54 किलोजूल पर मोल को माइनस से रिप्रेजेंट इसलिए करूंगा क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है व्हिच शोस रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. सही है. तो मैं साइन यहाँ पर भी मेंशन कर देता हूँ. Now the next part, use the following Haseloff cycle to calculate delta HR. We need to find out this value. Okay. और ये रिएक्शन है पोटेशियम कार्बोनेट का और ये रिएक्शन है पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का और दोनों रिएक्शन कर रहे हैं HCl से. अच्छा, ये याद रखिएगा दिस इज 1 मोल.
तो आपने जो इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है ना -12.54, वो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 1 मोल है। ऑन द अदर हैंड आप नोट करें, ये आपके पास है 2 मोल, राइट। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आपने 29.26 कैलकुलेट की थी वो 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो 29.26 मल्टीप्लाई बाय 2, सही है। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो गाइस जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, अब हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप एक एरो बना लीजिए। तो ये वैल्यू भी क्लॉकवाइज से मैच कर रही है, प्लस ये वैल्यू क्लॉकवाइज से मैच कर रही है, प्लस ये वैल्यू क्लॉकवाइज से मैच नहीं कर रही, इसलिए माइनस इक्वल्स टू 0 कर लेंगे। दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास। तो ये हो जाएगा डेल्टा एच आर, ये प्लस वैल्यू हो गई, प्लस -12.54 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस +29.26 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से डेल्टा एच आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये वैल्यू मेरे पास आ रही है +71.06 किलो जूल्स पर मोल। y इक्वल्स टू 0 मैं क्लास में भी बता चुका हूँ, इसलिए बिकॉज आई नीड टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। अच्छा आप चाहें तो आप इसको रिवर्स करके भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आना है, ठीक है। According to the Hess's law, reaction proceed in one step or more than one step, total amount of energy remains same. Okay. Now the next is a textbook states the value of the enthalpy change for the decomposition of potassium hydrogen carbonate as +76, यानी मैंने कैलकुलेट किया 71, यहाँ पर आई है 76। वो कह रहे हैं कि 76 क्यों आई है, वो कह रहे हैं सजेस्ट टू रीजन व्हाई द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू। जाहिर सी बात है जब एक्सपेरिमेंट किया होगा तो हीट लॉस हुआ होगा। मैंने पढ़ा बताया था ना कि यहाँ पर मैंने लैगिंग यूज नहीं की, तो दिस माइट बी द सोर्स ऑफ एरर, एंड बिकॉज ऑफ दैट सोर्स ऑफ एरर वैल्यू चेंजेस। तो हम यहाँ लिख सकते हैं heat might loss into the surrounding. ओके ये भी तो हो सकता है कि हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, इसलिए भी कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट did not perform under standard condition. ओके ये दो रीजन होगी। थर्ड थर्ड ये है कि हो सकता है कि हमने ये जो मोल्स निकाले हैं ये मोल्स एग्जैक्ट नहीं निकाले, जिसकी वजह से जो मास ऑफ सॉलिड था वो भी एग्जैक्ट हमें नहीं मिला, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि 0.0250 moles were not measured accurately hence mass weight for the solid was not exact। मोल्स एग्जैक्ट नहीं है तो मास भी एग्जैक्ट नहीं है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। Next is suggest one improvement to the apparatus which would reduce the difference between the experimental value and the actual value. So भाई हीट लॉस रोकना है, सही है। तो हीट लॉस रोकने का तरीका ये है कि आप लैगिंग यूज कर लो या आप टॉप के ऊपर कवर्ड लिड लगा दो।
तो आप यूज कर सकते हैं लैगिंग, यूज लैगिंग टू प्रिवेंट हीट लॉस। सही है। और यूज कवरलेट on top of the polystyrene cup. Okay. Next is name a suitable piece of apparatus which should be used to measure the volume of acid used in experiment 1. वो जो मैंने 50 cm क्यूब का वॉल्यूम मेजर किया था HCl का, अगर आपको याद हो, ये रहा, ये था ना, ये हमने किससे मेजर किया था? हमने ब्यूरेट से मेजर किया था, राइट? एक्यूरेट वॉल्यूम है ना, तो ब्यूरेट लिखा था मैंने, तो हम यहाँ लिख देते हैं ब्यूरेट। Next is, apart from wearing safety glasses and a lab coat, state one safety precaution which must be taken during experiment 1. Explain your answer. Chemical resistant gloves पहनो, wear chemical resistant gloves, जिनको हम nitrile gloves भी कहते हैं. Okay. That's the end of question number 1. Let's move to question number 2. अब question number 2 के लिए देखते हैं. Seems like a very interesting question. Rate of reaction से related है. Rate of reaction between calcium carbonate and hydrochloric acid can be followed by collecting and measuring the volume of carbon dioxide produced at 30 seconds interval. Okay, that's very easy. अगर volume of gas different time interval के ऊपर मुझे मिले तो मैं graph plot करके rate of reaction find out कर सकता हूँ. All right, equation is given. A student plans to collect the carbon dioxide by displacement of water. Okay, over water collect करना है, इसका मतलब draw a label diagram of the apparatus that could be used to carry out this experiment. The apparatus should allow the accurate recording of the volume of carbon dioxide produced. सबसे अहम बात जो मुझे यहाँ पर लग रही है कि भाई एक्यूरेट रिकॉर्डिंग तो आप उसी वक्त मेजर करोगे जब आपके पास एक्यूरेट एपरेटस होगा. सो वॉल्यूम को मेजर करने के लिए आई कैन यूज ब्यूरिट, क्योंकि उस पर ग्रेजुएशन मार्क होते हैं, आप उसको यूज कर सकते हो. मेजरिंग सिलेंडर भी यूज कर सकते हो. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं, ये जहन में रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सॉल्युबल होता है. कार्बन डाइऑक्साइड इज वाटर सॉल्युबल और सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, ये भी चीज जहन में रखिएगा. ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए. I'll try. ये हमने ओ लेवल के रेट ऑफ रिएक्शन के चैप्टर में पढ़ी हैं सारी चीजें. ठीक है. एंड ऑब्वियसली मैं यहाँ से इसको ब्लॉक कर दूंगा रबर बंग लगा के. ठीक है, ये रबर बंग हमने फिक्स कर दिया. चलो, ये तो हमने बना दिया. अच्छा, अब मसला ये है कि हमारे पास ये कॉनिकल फ्लास्क है और इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमारे पास दो चीजें हैं. पहली चीज तो ये है कि हमारे पास HCl है एक्वस, और हमारे पास इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी है. और आप जानते हैं कि ये कॉनिकल फ्लास्क है, और आप जानते हैं कि ये रबर बंग है, और रबर बंग इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि गैस जो है वो रिलीज ना हो. ठीक है, जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर के ऊपर ये गैस का कलेक्शन करना है. सो मैं यहाँ पर एक वाटर ट्रफ बना देता हूँ.
ये वाटर ट्रफ आ गया मेरा। जाहिर सी बात है मैं गैस का कलेक्शन करूंगा मेजिंग सिलेंडर के थ्रू या फिर ब्यूरेट के थ्रू। सही है। एंड ऑब्वियसली इसके ऊपर ग्रेजुएशन मार्क होने चाहिए ताकि हमें पता हो कि जी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ओके। और ये आपका तो ये आपकी डिलीवरी ट्यूब आ गई। ओके। एंड गाइस ये आपका वाटर आ गया। तो ये वाटर ट्रफ है। इसमें वाटर है। ये ग्रेजुएटेड आपका मेजिंग सिलेंडर है। एंड ऑब्वियसली इसमें गैस कलेक्ट हुई है तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। 3 मार्क्स के लिए वर्किंग मोर देन इनफ है। ओके। The student carried out the investigation using an excess of calcium carbonate with dilute hydrochloric acid. The student stopped timing after 330 seconds had passed. The volume of carbon dioxide produced was 93 centimeter cube, and that is going to be your V final, your final volume, and it's not going to change, right? और इस फाइनल वॉल्यूम को एग्जामिनर V final से ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके। V final is the final volume of carbon dioxide collected at 330 seconds, which is 93 centimeter cube. VT is the volume of carbon dioxide collected at each interval of time t. यानी हर 30 फिर 60, 60 के ऊपर VT, फिर 90 पे VT, right? फिर V final minus VT is proportional to the concentration of hydrochloric acid at a given time. तो concentration ज्यादा होगी तो ये भी ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन कम होगी तो ये भी कम होना शुरू हो जाएगा। सो V फाइनल माइनस VT मुझे निकालना है तो V फाइनल तो 93 है। सो गाइस हम काम ये करते हैं कि हम 93 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 0 से, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 93। ठीक है। V फाइनल माइनस VT तो यही बता रहे हैं। एक मिनट आगे पढ़, कंप्लीट द टेबल। ओके, कंप्लीट द टेबल। टेबल कंप्लीट करना है, काम यही करना है। फिर 93 माइनस 22, so it's going to be 71. फिर 93 minus 37 is going to be 56. फिर 93 minus 50 is going to be 43. फिर 93 minus 61 is going to be 32. फिर 93 minus 68 is going to be 25. Then 93 minus 75 is going to be 18. यानी कम हो रही है वैल्यूज, है ना। 93 minus 78 is going to be 15. फिर 93 minus 79 is going to be 14. फिर 93 minus 87 is going to be 6. And then 93 minus 90 is going to be 3. फिर 93 minus 93 is going to be 0. ओके, ये टेबल हमने कंप्लीट कर लिया, प्रोसेस कर लिया। तो 1 मार्क के लिए लॉट ऑफ वर्किंग एक्चुअली। एनी हाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। वो हमसे कह रहे हैं प्लॉट अ ग्राफ ऑफ V फाइनल minus VT on y-axis against time on x-axis. Use a cross to plot each data point. Draw a curve line of best fit. अच्छा, ये मैंने बनाया है
और मेरी स्ट्रिक्ट एडवाइस है आपको कि आप ग्राफ पेपर लें और ये डेटा प्रोसेस करें, ऑलराइट, और डेटा प्रोसेस करके ये ग्राफ प्लॉट करें. इट इज अ टफेस्ट ग्राफ आई हैव एवर सॉल्व्ड इन पेपर 5. बहुत मुश्किल है क्योंकि कर्व लाइन ऑफ बेस्ट फिट नहीं बन सकता, कर्व ऑफ बेस्ट फिट नहीं बन रहा था. इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट, व्हिच इज व्हाई आप देख रहे होंगे कि मेरा भी ग्राफ जो है ना वो बिल्कुल स्मूथ और एक्यूरेट नहीं है. सो आप लोग इसको जरूर बनाइएगा सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि किस तरह से ये काम करना है आपने. ठीक है, ये मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया और इस ग्राफ के ऊपर ऑब्वियसली ये वाला जो पॉइंट है ये सारे पॉइंट से सबसे ज्यादा दूर है, इसलिए ये एनोमलस पॉइंट है, तो हम इसको एनोमलस पॉइंट मेजर कर देते हैं, इनफैक्ट लेबल कर देते हैं एनोमलस पॉइंट. ओके, इसके बाद ये भी हो गया, सर्किल द पॉइंट विच यू कंसिडर टू बी एनोमलस. उसके बाद वो कह रहे हैं सजेस्ट वन रीजन फॉर दिस एनोमलस पॉइंट. ओके, one reason for this anomalous point. अच्छा, ये जो आपका एनोमलस पॉइंट आया ये एक्चुअली यहाँ होना चाहिए था. ठीक है, 242 के ऊपर यहाँ होना चाहिए था ये. सो इट इज हायर देन एक्सपेक्टेड. ये तो पहला पॉइंट हो गया कि हायर देन एक्सपेक्टेड है. तो मैं सबसे पहले क्या लिखता हूं कि वी फाइनल माइनस वी टी इज हायर देन एक्सपेक्टेड. सही. उसके बाद आप ये भी जानते हैं कि वी फाइनल तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं हो रहा. सही है. फिर आप ये भी जानते हैं नंबर थर्ड पे आप ये भी जानते हैं कि ये जो वैल्यू है ये हायर है देन एक्सपेक्टेड. यही आई है ना, वी फाइनल माइनस वी टी इज हायर. दैट शोज कि जो आपका वी टी है वो लोअर देन एक्सपेक्टेड होगा. ओके, सो विद इन दीज लाइंस मैंने यहाँ पर लिख कर देना है, तो मैं यहाँ लिख के दे देता हूँ. सो मैं यहाँ लिख के देता हूँ पॉइंट at 242nd is higher than expected. Okay, because V final minus VT is higher than expected. Higher than expected. If it is higher than expected, then it means VT at 242nd is lower than expected. और चूंकि लोअर देन एक्सपेक्टेड है देन इट मींस मैंने जो है ना रीडिंग की है 242 से पहले. ये रीडिंग 242 से पहले रिकॉर्ड, मीनिंग we record the reading, we record the reading earlier than 240 seconds. Okay,
Now the next is draw construction lines on the graph to calculate two consecutive half-lives. For this reaction, use these half-lives to determine the mean half-life. Okay, दो half-life फिर उसकी mean half-life और टू consecutive half-lives construction line draw करनी है. ओके ओके ओके, चलें कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करते हैं आपके लिए. ये पॉइंट आई थिंक सो 93 है. तो अगर मैं 93 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू बनेगी 46.5. तो मैं 46.5 के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करूंगा. ये मैंने ड्रॉ कर दी है कंस्ट्रक्शन लाइन. ठीक है, और इस कंस्ट्रक्शन लाइन को ड्रॉ करने के बाद मैं 46.5 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 23.25. So 23.25 is basically this value. इसके ऊपर भी मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करी और ये आ गई. सही है. अब आपने बहुत समझदारी से बात सुनी है. कि यहां से लेकर यहां तक ये मेरा फर्स्ट हाफ लाइफ है और इस फर्स्ट हाफ लाइफ को मैं अप्रोक्सीमेटली 80 कह रहा हूँ. फर्स्ट हाफ लाइफ को मैं क्या कह रहा हूँ, 80 सेकेंड्स. राइट. अच्छा, ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये 120 है आपके पास और ये 150 है आपके पास. ठीक है. माय गुडनेस. नेक्स्ट इज यहां से लेकर यहां तक ये आपकी सेकेंड हाफ लाइफ है और इस सेकेंड हाफ लाइफ को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 160 है या 150, 160 आ रहा है और 160 में से 80 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 80 सेकेंड्स. ओके, तो मेरी फर्स्ट हाफ लाइफ भी 80 सेकेंड, मेरी सेकेंड हाफ लाइफ भी 80 सेकेंड. ओके, कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ हो गई, पता चल गया आपको. तो मैं लिखूंगा कैसे, मैं लिखूंगा इस तरह से कि फर्स्ट टी हाफ मेरा कितना है, 80 सेकेंड्स. फिर सेकेंड टी हाफ मेरा कितना है, 160 minus 80 is going to be 80 seconds again, right? Okay, अगर मुझे मीन निकालना है तो जाहिर सी बात है मैं दोनों हाफ लाइफ्स को ऐड करूंगा, डिवाइड बाय 2 कर दूंगा. तो ये भी मेरे पास कितना होगा, 80. तो फर्स्ट हाफ लाइफ 80, सेकंड हाफ लाइफ 80, थर्ड हाफ लाइफ भी 80. सही है. Next is the rate constant K for this reaction calculated by using the following expression. ये एक्सप्रेशन हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए दिया हुआ है आपको. टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 ओवर के. ये वैल्यू जो है वो ln2 के थ्रू आती है, हमने क्लास में बताया आपको. चलें कर लेते हैं. हमने टी हाफ कितना निकाला हुआ है, 80 इक्वल्स टू 0.693 ओवर के. के की वैल्यू मैंने निकाल ली है तो के इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय 80. सो के की वैल्यू यहां से मेरे पास आएगी 8.66 into 10 to the power minus 3. ठीक है. ओके, ये हो जाएगा 8.66 into 10 to the power minus 3. और ये सेकंड इनवर्स इसलिए आ रहा है क्योंकि हाफ लाइफ नीचे आ गई. ठीक है, हाफ लाइफ सेकंड्स में थी ना आपकी. ऑलराइट, सेकंड इनवर्स हो जाएगा वो. नेक्स्ट इज state how an increase in temperature would affect the value of K for this reaction. Explain your answer. आप जानते हैं कि temperature और K both are directly proportional to each other, right? So rate equation में
K is directly proportional to the rate constant. Mhm. Uh-huh. K is directly proportional to the rate of reaction. ओके तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा. इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस rate constant also increases. और अगर रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो रहा है. और जब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है इसका मतलब इफेक्टिव कोलिजन इन यूनिट टाइम इंक्रीज होते हैं यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है. thus collision frequency increases. Okay, now the next is, my goodness, it's a huge question. Oh, okay, let's start. Calcium carbonate is a component of antacid tablet. Antacid tablet. An alternative method of stating the rate of reaction between calcium carbonate and hydrochloric acid is place one antacid tablet into the beaker. Okay. 50 cm cube in excess of 2 mole per dm cube hydrochloric acid. Why are we using this excess amount? मेक श्योर कर रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट फुली रिएक्ट हो जाए यानी सॉलिड आपका पूरा का पूरा रिएक्ट हो जाए, एंटासिड टैबलेट फुली रिएक्ट हो जाए. तो हम यहाँ लिख देते हैं टू मेक श्योर सॉलिड फुली रिएक्ट. ऑलराइट, नेक्स्ट इज and start the stop clock, that is the stopwatch. Immediately record the time taken for fizzing to stop. Fizzing to stop. कैसे पता चलेगा फिजिंग टू स्टॉप हो गई है? कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स आना बंद हो जाएंगे. ठीक है, जो एंटासिड टैबलेट है वो आपको सॉल्यूशन में नजर नहीं आएगी, वो कंज्यूम हो जाएगी. तो नो मोर bubbles of gas is seen, या फिर no more tablet remain in the solution. No more tablet remain in the solution. ठीक है. Antacid tablet typically 1 gram of calcium carbonate. That's an important statement कि हमारे पास 1 gram of calcium carbonate है इसके अंदर. ठीक है. Complete column A, B, and C in the table to show 4 more concentration of excess HCl, which would allow this method to be carried out. Each sample of HCl must be made by dilution of 2 mole per dm cube HCl. भाई जब डाइल्यूशन करते हैं तो सीरियल डाइल्यूशन कहलाते हैं इसको. सीरियल डाइल्यूशन. ओके, याद रखिएगा कि जो टोटल वॉल्यूम है ना वो 50 ही रहना चाहिए. यानी अगर ये 50 है, ये 0 है, तो ये 2 मोल पर डीएम क्यूब आया. राइट. तो अगर मैं लेट सपोज इसको 40.0 कर देता हूँ, 30.0 कर देता हूँ, 20.0 कर देता हूँ और 10.0 कर देता हूँ. राइट. तो अगर ये 10.0 है तो ये 40 है तो ये 10 ताकि टोटल 50 हो. फिर ये 20.0, फिर ये 30.0
और ये 40.0, तो टोटल वॉल्यूम विल रिमेन सेम, दैट इज 50 cm क्यूब, राइट, क्योंकि हमने 50 cm क्यूब का वॉल्यूम जो है वो यूज किया हुआ है। ठीक है जनाब। ऑन द बेसिस ऑफ दैट, अगर 50 cm क्यूब पे 2 मोल पर डीएम क्यूब है, तो ऑब्वियसली 50 cm क्यूब पे अगर 2 मोल पर डीएम क्यूब है, तो 40 cm क्यूब पे कितनी कंसंट्रेशन होगी? दैट्स व्हाट्स वी नीड टू फाइंड आउट। माय गुडनेस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या करना है? 1000 cm क्यूब में 2 मोल है, तो 50 में क्या है? ठीक है, ओके। चलें कुछ कैलकुलेशन करके दिखाते हैं कि ये वैल्यूज कैसे कैलकुलेट। आई नीड टू फाइंड आउट दीज वैल्यूज गाइस। सो लेट मी थिंक। मुझे मास दिया हुआ है, तो मैं इसके मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। मोल्स अगर आ गए तो क्या होगा? मोल्स अगर आ गए तो कुछ नहीं होगा। चलें, लेट मी ट्राई। चलो देखो, 1000 1000 सेंटीमीटर क्यूब। जब आपके पास 50 cm क्यूब था, तो उसमें 2 मोल पर डीएम क्यूब थी, है ना? तो 50 cm क्यूब में आपके पास 2 मोल पर डीएम क्यूब थी। तो अगर आपके पास 40 cm क्यूब है, तो बताइए कितना होगा? तो ये हो जाएगा मेरे पास 40 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाई 50 इज गोइंग टू बी 1.6। तो मैं यहाँ लिखूंगा 1.6। इसी तरह से यहाँ पर एक और कैलकुलेशन करते हैं। 50 cm क्यूब में आप, ओहो, 50 cm क्यूब में आपके पास 2 मोल पर डीएम क्यूब था। तो अगर आपके पास 30 cm क्यूब है, तो आपके पास कितनी होगी कॉन्सेंट्रेशन? 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 50 इज गोइंग टू बी 1.2 मोलर, राइट। ये 1.2 आ गई। वन मोर कैलकुलेशन। 50 cm क्यूब में आपके पास कंसंट्रेशन थी 2 मोलर, राइट। और आपके पास वॉल्यूम कितना है अब? 20 cm क्यूब। सो 20 cm क्यूब में आपके पास कंसंट्रेशन कितनी होगी? 40 डिवाइडेड बाय 50 इज गोइंग टू बी 0.8 मोलर। यानी डाइल्यूट कर रहे हैं आप सोल्यूशन को, तो कंसंट्रेशन कम हो रही है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, oops, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 50 cm क्यूब में 2 मोलर है कंसंट्रेशन। तो अगर आपके पास 10 cm क्यूब है, तो बताइए कंसंट्रेशन कितनी होगी? तो कंसंट्रेशन गाइस आपके पास आ जाएगी 10 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाई 50 इज गोइंग टू बी 0.4 मोलर। तो ये हो जाएगा 0.4 मोलर। आई होप इट मेक सेंस टू यू। मुझे एग्जैक्ट नहीं करना, मुझे सिर्फ आइडिया थ्रो करना है। जाहिर सी बात है, आप सोल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हो, तो कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए। ठीक है। Now the next part of the question is identify the dependent variable in this investigation। तो मैंने आपको कई मर्तबा जून सीरीज में बताया है कि डिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं? वाई एक्सिस। और कैसे याद रखा भाई मैंने? वाई आर यू सो डिपेंडेंट? और डिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है एक्चुअली? व्हाट यू मेजर या व्हाट यू रिकॉर्ड। और मैं बेसिकली यहाँ पर क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ? मैं बेसिकली यहाँ पर टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, isn't it? तो इसका मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा मेरे पास? टाइम। वैसे ग्राफ में भी टाइम ही था, ठीक है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल।
ओके so कौन सा time taken for the reaction to stop. ओके हम इसकी बात कर रहे हैं ना कि हमें ये मेजर करना है. Suggest how the reliability of the results could be improved. Guys, reliability is basically the accuracy of the experiment. और accuracy हमेशा कब आएगी? जब आपको consistent result मिलेंगे experiment repeat करने पे. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? Repeat the experiment for each particular concentration of HCl and then process the value to get the average time, and then process the value to get the average time. हम एक्सपेरिमेंट रिपीट करते जाएंगे इन डिफरेंट कंसंट्रेशंस को लेते हुए. हर कंसंट्रेशन का मुझे टाइम मिलेगा, इन सारे टाइमिंग्स का मैं मीन निकालूंगा. ठीक है, टू गेट द एवरेज टाइम फॉर फिजिंग टू स्टॉप. ओके, that's the end of question number 2. I believe that's the end of the paper. Thank you very much.